So today discussing with you the very important topic that is Bach flower remedies, and it is important topic that the homeopaths, or if you are studying the homeopathy, you must know that how the medicines are prepared and what is the concept behind developing the Bach flower remedies, and who is the inventor of this Bach flower remedy. Inventor is Dr. Edward Bach. He is the inventor of this Bach flower remedies. He is not a allopath or not relating to any other therapeutic system. He is also a homeopath. Okay, and he is known for creating the Bach flower remedy. So, what is the concept of creating this different alternative or complementary treatment? Okay, the concept is he uses uh, what part, or he uses what plant to create the medicine. This is a very important thing you must know, that he believed in the healing power of the remedies. Okay, जो remedies बनी किससे हो, the remedies that are made out of watered extract from the flowers of wild plant, from the flowers of wild प्लांट्स. ओके, तो ऐसी दवाइयाँ जो किससे बनी हो, वाइल्ड प्लांट के फ्लावर के वाटर एक्सट्रैक्ट से. ठीक है, उसको हम बैच फ्लावर रेमेडीज़ कहते हैं. ये एक अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है दैट इज़ यूज्ड. अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड पेन. ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम और पेन्स को ट्रीट करने के लिए बैच फ्लावर रेमेडीज़ जो हैं वो बताई गई हैं, उनको इन्वेंट किया गया है. क्योंकि एडवर्ड बैक थे, उनका बिलीफ सिस्टम ये था कि कुछ ना कुछ जो कहीं ना कहीं इमोशनल प्रॉब्लम ने ही किसी ना किसी डिजीज़ को क्रिएट किया है. ठीक है, and it uses the natural substance. It uses a small amount of natural substance. Okay, it uses a small amount of natural substance like plants and minerals to treat the body or mind, to treat body or mind. And it doesn't work directly on, and it doesn't work directly on फिज़िकल सिम्टम्स. ओके, ये फिज़िकल जो भी आपके सिम्टम्स हैं उस पर डायरेक्टली काम नहीं करती है. इट डजंट वर्क डायरेक्टली ऑन द फिज़िकल सिम्टम्स, इट वर्क्स ऑन द मेंटल इमोशंस. काय पे वर्क करती है? वर्क ऑन mental emotions. This is the concept of the Bach flower remedy. Okay, क्या कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया. हु इज़ इन्वेंटर वो मैंने आपको बता दिया. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एडवर्ड बैक थे वो बिलीव करते थे कि जितने भी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, दीज आर द क्रिएटर ऑफ द डिजीज़. तो अगर हमने इस नेगेटिव इमोशंस को ही हील कर दिया, अगर आपने इन नेगेटिव इमोशंस को ही हील कर दिया, तो आपकी बॉडी अपने आप जो है वो हील हो जाएगी. तो इनके सिस्टम में 38 रेमेडीज़ थी. ठीक है, देयर आर 38 रेमेडीज़
और वो जो हर रेमेडी है उसका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक इमोशन है, स्पेसिफिक नेगेटिव इमोशन है। ओके, द कंडीशंस और द इमोशंस, उनको 7 ब्रॉड साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में ग्रुप किया गया है। ठीक है, जो भी इमोशंस हैं उनको 7 साइकोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ इलनेस में ग्रुप किया गया है। कैसे? जैसे कि फियर हो गया, ठीक है, अनसर्टेनिटी, next is, this is one was fear, next is uncertainty, third one is lack of interest, and lack of interest in what? In present circumstance. Next is loneliness. Next is oversensitivity to influence and ideas. Oversensitivity to influence and ideas. Next is sadness, or we call it as despair. And last one is caring. Cares for what? For other at the expense of self. Care हर कोई करता है, but if you are doing the caring at the expense of yourself, that is the last one emotions of the Bach flower remedies. Cares for others at expense for self. All right, so these are what? These are the 7 broad psychological cause of illness. जो भी इमोशंस थे, ये जो 7 मैंने आपको बताए हैं, these are what? Emotions that are grouped into 7 broad psychological causes of illness. This is a theory of Bach flower remedies. Okay, now how you are going to select the Bach flower remedies? So select a flower remedy according to the emotional issues. कैसे सेलेक्ट करोगे कि कौन सा इन 7 क्राइटेरिया में से कौन सा इमोशनल इश्यू जो है वो पेशेंट को है, और व्हाट इज़ द इमोशनल इश्यू दैट इज़ एट द रूट कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट प्रॉब्लम. So you might choose one remedy or mix several together. Okay, now how you are going to create a treatment bottle. Okay, so treatment, just wait. So how you are going to create a treatment bottle? So making a treatment bottle involves putting 4 drops of each chosen essence into 30 ml बॉटल. जो भी आपने एसेंस चूज़ किया है उसकी 4 ड्रॉप आपको किस में डालनी है? 30 ml की बॉटल में डालनी है, containing approximately 20% of brandy and 80% water. ठीक है, that 30 ml bottle contains approximately what? 20% of brandy and 80% of water. So what is the usage of that brandy here?
दिस brandy is a preservative. Okay, and if you are preparing a bottle for the someone who wishes to avoid the alcohol, so उसमें आपको क्या करना है, उसमें कुछ बूंद आपको बहुत जो हॉट वाटर है उसकी डालनी है. वो क्या करेगा, वो अल्कोहल को एवेपोरेट कर देगा. और ड्रॉप्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द रिस्ट वेयर अ रिच नेटवर्क ऑफ द मेरिडियंस इज टू बी फाउंड. ओके, सो बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो यही करते हैं कि जब भी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो एक तो ओरल होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन टाइप. दूसरा जो है वो होता है थ्रू स्किन. सो उसमें जो रिस्ट के आसपास है वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं. तो अगर आप भी ऐसे इंसान के लिए मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हो जो चाहता ही अल्कोहल को अवॉइड करना है या छोड़ना है, तो उसमें आपको करना है, कुछ बहुत गर्म पानी की बूंदें उसमें डाल देनी है, जो अल्कोहल है वो एवेपोरेट हो जाएगा. या फिर आपको करना है, जो भी आपकी जो एक्सट्रैक्ट आप निकाल रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया है प्रिपरेशन टाइप में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो आप वाटर्ड एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हो फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ वाइल्ड प्लांट, उस एक्सट्रैक्ट को ही आपको रिस्ट पे लगा देना है, जहाँ पे आपको रिच नेटवर्क ऑफ मेरिडियंस मिलते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द डोसेज ऑफ दिस. सो व्हाट इज़ द डोसेज ऑफ दिस. द डोज इज़ 3 to 4 drops on the tongue. Dose is 3 to 4 drops on tongue 4 to 6 times daily. Okay, for up to about 6 week maximum. For up to about 6 weeks maximum. Okay, सो द बेच फ्लावर रेमेडीज़ आर ग्रुप्ड. यहाँ पे मैंने आपको बताया है जैसे ऊपर कि 38 रेमेडीज़ हैं, जो हर रेमेडी है वो स्पेसिफिक नेगेटिव इमोशन पे काम करती है. ठीक है, सो बेच फ्लावर रेमेडीज़ को ग्रुप किया है आपने बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी टाइप एंड मूड. तो 38 रेमेडीज़ हैं, स्पेसिफिक मूड के लिए बनी हुई है. ठीक है, और यहाँ पे साथ के साथ मैंने ऊपर ये बताया था कि जो 7 इमोशंस हैं, इमोशंस को भी 7 ब्रॉड साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ इलनेस में ग्रुप किया है. ठीक है, सो बेच फ्लावर रेमेडीज़ डू नॉट हैव द डेफिनेट लिस्ट ऑफ रेमेडीज़. प्योर एक्सपीरियंस एंड इंट्यूजन कैन बी गाइड फॉर सिलेक्शन. ठीक है, जैसे कि सपोज नेम ऑफ द बेच फ्लावर रेमेडीज़ एस्पेन. सो एस्पेन इज़ फॉर द फियर एंड एंजाइटी ऑफ द अननोन ओरिजिन. तो यहाँ पर आपने जो फर्स्ट पॉइंट देखा दैट इज़ फियर. सो जो एक बेच फ्लावर रेमेडी है एस्पेन, दैट इज़ फॉर द फियर एंड एंजाइटी ऑफ द अननोन ओरिजिन. ओके, देयर इज़ अनदर बेच फ्लावर रेमेडीज़, क्योंकि मैंने बताया 38 रेमेडीज़ हैं, तो वो 38 रेमेडीज़ किसी ना किसी स्पेसिफिक इमोशन के लिए है. तो एस्पेन ने जैसे कि फियर इमोशन उठा लिया. ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ मेडिसिन नेम्ड एग्रीमनी. सो दिस इज़ फॉर द इनर सफरिंग एंड एंग्विश हिडन बाय द स्माइलिंग और ब्रेव फेस. सो देयर इज़ द इनर सफरिंग, और वी कैन से एंग्विश. चेहरा तो हंसता हुआ है लेकिन देयर इज़ इनर सफरिंग. ओके, सो दिस इज़ द कंसेप्ट कि 38 रेमेडीज़ हैं बेच फ्लावर. हर रेमेडीज़ जो है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नेगेटिव इमोशन पे काम कर रही है.
तो उन इमोशंस को भी ब्रॉडली इस 7 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, दिस इज़ द कंसेप्ट हाउ द मेडिसिन बॉटल इज़ प्रिपेयर्ड, हाउ to give out the medicine. This is all about. So if you want the information of the 38 bachelor remedies and on what specific emotion it is going to act, okay, you can ask me in the comment section. Definitely in the next video I am going to give you the information of all the 38 bachelor remedies and what are the specific emotions on which it acts, okay. So give a hint in the comment section. Definitely I will make a video. In this video I discussed who is the creator of the bitch flower remedies and how the bitch flower remedies are created and all the important concept, how the treatment bottle is prepared and what is the dosage, okay. So try to share out this video with your friends and colleagues who are also searching for the similar videos. Till then, all the best, and ask me in the comment section if you want a further important list of the best flower remedies with their usage and how it acts on the specific emotions and what are the specific emotions it acts, okay. So that's all for the day's video. I hope this video is going to be useful and helpful to you. If you find out this video useful and helpful, try to share out with your friends and colleagues who are also searching for the same. So that's all. Thanks for watching. Homeopathy.